So in the previous video, my screen was frozen for around 20 minutes. So it was not like I have explained it, but like the visual screen was not presented. So I'm going to cover again in this tutorial. So better to be like you're going to be the exact things which I have discussed. So let me summarize this in the second video to be in like around short 10 to 15 minutes. So let's start about the Docker. What is Docker? And all going to cover with the Docker clients and Docker host, with the Docker daemons, how it works, and Docker swarms, other things, the Docker commands. So let's start. Start with the Dockers now. So what is the mean by Docker? So Docker is like an OS level virtualization platforms which like applications will be shared on the basis of OS host kernels. What does it mean of OS host kernels and why it is so? So which I have explained in the previous video regarding that one. Suppose your room is like an individual apartment or having a its own washroom or kitchen, so it's like convenient, but it should be more costlier. But what happened like if you are rented flat which you're having your own room, your own applications, it means, but it's like common use of kitchens, common use of like washrooms. So that means like the cheapest way you can get the affordability of your running your livelihood, or like kind of say as like cheaply cost ways to you can run your applications. So Docker is like the same way. You're going to provide the host operating system kernel. The same operating system kernel is being used where the host is being utilized, means the where the host is being used as the kernel wise. So yeah, the Docker is an OS level virtualization platform where the applications is going to share the application of the OS kernel instead of running in the individual OS kind of. This makes the Docker containers lightweight, fast, and portable. And it is written in a Go programming languages. And why is Docker is required? This means like give you another example. Suppose a developer has like in X environment has developed some applications in the Java and all, so they are using Java 17 and configurations in his own local environment kind of, and his overall working very fine. It's absolutely fine. It's nothing, not an issue. His applications are running very absolutely perfect, working fine. What happened when his applications trying to deploy into other machines with having different operating system, different configurations, and also application is getting a problems to be get it run executed even. So to overcome these situations on the different premises and different cloud environment, application can be running, right? So in that case, the Docker make like a suitable environment where all the application is packed into one particular container, where this container can be shipped anywhere like X particular platform, X local system, or via different buy systems, cloud system, where do we want. So the applications having all the configurations like dependency and all Java version, whatever you want, and accordingly the applications is executed accordingly. Okay, so Docker is made of like make a big advantage in that conditions. So it's like runtime, you can decide which Java version you want to get executed on, and you can switch on accordingly. So different companies like they're using Netflix, Uber, Spotify, PlayPal, AWS Azure, using their own environment like depending on the use cases. The microservice deployment, CI/CD pipeline basic, whether CI/CD pipelines, cloud native apps, application isolation, and AI workloads, legacy, modularizations. So this is all they are like have you being using with a different company. So now this is Docker architecture and working. So Docker architecture is based on client server architecture, where the client is Docker client is, what does that mean of Docker command, which we're using it through a command line interface. We're using some commands to be getting from the API, Spring REST API, and it's like it's a middleware which is with all this Docker command is going to be given to the Docker host where the Docker daemons resides. The Docker daemon is the main things over in the host where who manages everything is the images or containers. So what happened? Docker is the client server architecture. Docker client talks to the Docker daemon, which builds, runs, and manages containers. They communicate through a REST API via Unix. Docker is based on a client server model. The Docker client sends requests to the Docker daemon. The Docker daemon handles the container lifecycle task and all. The communication happens over REST API using sockets or networks in between them, the client, Docker client, and Docker host. So I'm clear here right now. The Docker client is like what is the primary interface for the user. When you execute some commands, just a Docker runs or Docker build, the client translates them into the REST API request and sends it to the Docker daemon. What is Docker host? This is the machines where the magic happens.
It runs the Docker daemon and provide the environment to execute and run containers. Docker registry is like a remote repository, that's like a GitHub, like kind of carrying the code and all. So here it is consisting of the images and the containers. It's a remote repository for storing and distributing Docker images. The interactions forms a simple yet powerful loops. Use the clients to issue commands to daemons and the host, which can pull images to registry and as the containers. So hope you can see this architecture, the client server architecture, what it works when means like example. Let me explain with a different in the easy approach. जब क्लाइंट एक डॉकर क्लाइंट क्या है, एक इंटरफेस है जहाँ पर यूज़र एक कमांड्स कुछ रन करता है, डॉकर रन बिल्ड पुल, और वो रन कमांड किसके थ्रू जाता है डॉकर हाउस के पास, वो एक एपी रेस्ट एपीआई के थ्रू नेटवर्क यूनिट सॉकेट के थ्रू जाता है। और डॉकर होस्ट के पास क्या होता है, एक डॉकर डेमन होता है जो ही इमेज और कंटेनर को मैनेज करता है, पुश करता है रजिस्ट्री में, पुल करता है रजिस्ट्री को रजिस्ट्री। और डॉकर रजिस्ट्री क्या होता है कि सेंट्रल स्टोरेज होता है, जैसे कैसे हम लोग गिट में कोड रखते हैं उसी तरह इमेजेस और कंटेनर्स को रखने के लिए रजिस्ट्री होता है, जहाँ पर अपना लोकल भी रजिस्ट्री रख सकते हैं और डॉकर हब, एक डॉकर खुद का हब रजिस्ट्री यूज कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी हाउ they are going to manage the images and all. So before Dockers there are traditional approaches, यहाँ पर हर एक ऐप के लिए अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे। It's very difficult, it's like very complex। ऐसा था आर्किटेक्चर। आप देख रहे हो ऐप 1 ऐप 2 अलग अलग 3 एप्लीकेशन है जो कि बिन लिब्स सबका अलग अलग कन्फिग्रेशन लाइब्रेरी फाइल्स था और उसको एक सिंगल इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया था। और इस पर हाइपरविजर जो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को शेयर करने के लिए यूज़ किया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सबका अलग अलग है वर्चुअल मशीन पे। अब यहाँ पर देखो कि आज के ट्रेडिशनल अप्रोच में कंटेनर पे मल्टीपल एप्लीकेशन डाला हुआ है, एक एप्लीकेशन एक कंटेनर पे एक एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेबल है। और ऐप 1 आप देखोगे ऐप 1 एक कंटेनर पे है, दूसरे कंटेनर पे ऐप 2 है, लेकिन ये सबको मैनेज करने के लिए डॉकर इंजन यूज़ किया जा रहा है और डॉकर होस्ट उस पर एक ही कर्नल बेस्ड शेयर किया गया है डॉकर आर्किटेक्चर में। So it makes more sensible for using this traditional based approach with the Docker architecture. Docker engines which like मैंने एक्सप्लेन भी किया था पहले भी कि एक ये ओपन सोर्स कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी है जो कि पैकेज करता है एप्लीकेशंस को एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल के रूप में, जहाँ पर आपका फिर से वही आर्किटेक्चर फॉलो करता है कि डॉकर क्लाइंट उसके डेटा को डॉकर क्लाइंट सब कमांड्स को लेकर के डॉकर डोमेन को देता है, रेस्ट एपीआई के थ्रू वो सब इमेजेस कंट्रोल को मैनेज होता है। तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ यहाँ पर दिखेगी, आप इसको गो थ्रू कर लेना। डॉकर क्लाइंट फिर से बताया आपको एक क्लाइंट इंटरफेस है जहाँ पर आप कमांड लिखते हो, आजकल GUI भी आ गया जिसमें आप कमांड यूज़ कर करके आप भेजते हो रेस्ट एपीआई के थ्रू डॉकर डेमन्स को। ये आर्किटेक्चर है कैसे रन करता है कि क्लाइंट जब जो कोई कमांड रन करता है तो डॉकर डेमन्स के पास आने के लिए रेस्ट एपीआई के थ्रू आता है और एक कंटेनर्स के थ्रू रजिस्ट्री के जो कंटेनर जो भी आप पुश करते हो रजिस्ट्री में आप कर सकते हो, लेकिन इंटरनली एक रनसी कमांड यूज़ होता है जहाँ पे आपको पोर्ट जिस भी पोर्ट पर रन कराना हो कंटेनर को रन करा सकते हो। मैं आपको कमांड के थ्रू रन करा के भी दिखाऊंगा। डॉकर रजिस्ट्री बताया था आपको स्टोरेज है आपका डॉकर इमेजेस का। एक इमेजेस क्या होता है, जैसे कि जो भी एप्लीकेशंस आप बनाते हो, जैसे कि आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो जार बना रहे हो उसका एक इमेजेस बनता है, मतलब एक उस इमेजेस पर भाई कंटेनर होता है जो कि आप उस कंटेनर के अंदर मतलब करने उस इमेजेस को आप रन कर रहे हो एग्जीक्यूशन बनाने के लिए कंटेनर में आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उस कंटेनर का यूज़ करते हो, लेकिन उसको उस स्पेस होता है कि कहाँ वो रहेगा। तो वो डॉकर रजिस्ट्री का स्टोरेज स्पेस जगह पे जहाँ पर आपका डॉकर इमेजेस रहता है, जस्ट लाइक गिटहब स्टोरेज लाइक काइंड ऑफ। सो हमारा यहाँ पर कंटेनराइज स्टोरेज होता है, इजी डिस्ट्रीब्यूशन, वर्जन कंट्रोल, अपने वर्जन कंट्रोल के हिसाब से वर्जनिंग के हिसाब से उसको आप उस इमेजेस को आप चेंज कर सकते हो। डॉकर वॉल्यूम्स मीन्स लाइक डॉकर इज अ वोलेटाइल इन नेचर, उसका डेटा वोलेटाइल होता है, उसका डेटा लॉस कर सकता है अगर क्रैश हुआ तो उसके लिए हमें डॉकर वॉल्यूम मेंटेन करने की जरूरत है, उसे क्रिएट करना पड़ता है वॉल्यूम, जहाँ पर लॉगर और उसके जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। लॉग्स भी इसी तरह रखते हैं, CI/CD पाइपलाइंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम्स क्रिएट करने के लिए डॉकर वॉल्यूम क्रिएट माई डेटा का यूज़ करते हैं कमांड का, और इस तरह बैकबोन होता है पर्सनल डेटा कंटेनर्स का। Swamps is very important for like scalability kind of, अगर स्पाइक्स बढ़ गया कॉल वॉल्यूम का बढ़ गया तो आपका रिक्वेस्ट पहले लाइक 10 सेकेंड में 100 था 1000 आने लगा 1 लाख आने लगा, तो उस कंडीशन में आप मल्टीपल नोड्स इंक्रीज कर सकते हो। तो उस कैसे होता है उसके लिए मल्टीपल रेप्लिका यूज़ करना पड़ेगा। मल्टीपल रेप्लिका में मल्टीपल कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन, सो सम कमांड्स यू हैव टू रन इट, so you have to initialize the swarms with using docker swarm inits
जब इनिशियलाइजेशन करते हो उसके बाद आपको रेप्लिकास क्रिएट करनी होती है कि नोट्स पर नोट्स पे सिस्टम पे कितना आप मतलब बना सकते हो आप उसका एप्लीकेशन का रेप्लिका, और उस पर कॉल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. सो हाउ इट वर्क्स इन द डॉकर स्वाम्स. This is like a Docker native container orchestration tool. It allows to manage a cluster, means bunch of Docker engines hosted as a single virtual system. In swarm mode, you can deploy, sync, scale, and manage containerized applications to multiple machines. A group of machines running Docker manager controls scalability easily increase or decrease the number of containers. डॉकर स्वाम्स क्या होता है, वही सेम चीज़ है. डॉकर स्वाम्स जो आप सॉरी इसी के बारे में बता रहा हूँ, उस कमांड के बारे में कि कैसे आपको रेप्लिकास कैसे क्रिएट करना है. डॉकर सर्विस डॉकर स्वाम इनिट करने के बाद डॉकर सर्विसेज क्रिएट रेप्लिकास ऑफ 3 विद पोर्ट नंबर एंटिटी और एनजीआरएस के जहाँ पर आप अपना स्प्रिंग बोट का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो. यू गोइंग टू यूज इट ओवर हियर. यू कैन स्केल अप ए सर्विस लाइक 10 replicas. Example, Docker service scale nginx equal to 10 means like 10 replicas will run now distributed across multiple available nodes. So this is how I'm going to work it. Now I'm going to use the Docker commands, which I have explained it before. Let me explain it again. So I have to create a common prompt. Just give me a second. Just give me a minute. I'm going to create a particular command. Just give me a second. I'm going to create a screen now. Yeah. So you must be seeing my screen now. 1 second. Yeah. Is it visible now? Not so. 1 second. Command prompt. Automatic. So bit. Just give me 1 minute more. Almost I'm done. Command. Okay, and here we go. Sorry. इसमें आना चाहिए तब तो. Command prompt. Auto 10. Yeah. Now you can see my command prompt now. So if I wants to see the Docker version which is running, so पहले आपको Docker डेस्कटॉप इंस्टॉल करना होगा. Docker इंस्टॉल करने के बाद विंडो के स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से Docker आपको इंस्टॉल करना होगा. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप 8 GB रैम यूज़ कर रहे हो या 4 GB रैम, मतलब मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन पे रन कर रहे हो, तो डॉकर सिस्टम को स्लो कर देता है थोड़ा. तो आप अपना स्पेसिफिक पर्सनल लैपटॉप पर यूज़ कर रहे हो तो उस हिसाब से आप मैनेज करो. अभी आप देखो डॉकर में कमांड इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसका वर्जन आपको दिया हुआ है कि x86 आर्किटेक्चर, उसका CPU 8 यूज़ कर रहा है. टोटल मेमोरी अपना ये है 6 GB, और इसका सर्वर तो ये सब डिटेल्स है. इसका वर्जन 29.3 डेस्कटॉप यूज कर रहा हूँ, और डॉकर डेस्कटॉप. सो दिस इज़ ऑल डिटेल्स. डॉकर इज इंस्टॉल. अभी मैं एक और स्क्रीन ऐड करता हूँ, वो होगा हमारा इसके लिए डॉकर डेस्कटॉप के लिए. डॉकर डेस्कटॉप्स, विंडो कैप्चर, डॉकर डेस्कटॉप. इसका हो गया डॉकर का डेस्कटॉप. तो ये भी स्क्रीन दिख रहा हो आपको. हाँ, अभी मैं चलता हूँ पीपीटी पे चलता हूँ पहले. तो पीपीटी पे अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा. तो मैं अगर कोई इमेजेस पुल करना चाहूँगा तो पुल करने के लिए आपको ये कमांड डॉकर पुल, जैसे कि उबंटू है, तो उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करना चाहते हो जिस पे आपका एप्लीकेशन रन होना चाहता है, तो आप इसका यूज़ करना चाहते हो. और ये क्यों यूज़ करो, बस शो कर रहा हूँ कमांड. बाकी आपको बताऊँगा कैसे एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस को रन कराते हैं. ठीक है, पहले आप समझ लो ये कमांड्स कैसे वर्क करता है यहाँ पर. तो ये एक इमेजेस को पुल करना है. इमेजेस एक कहाँ होता है, हब में होता है. उस कौन से हब में, लोकल या डॉकर के हब में. और उसको पुल करने के लिए क्या होता है, वो चेक करता है कि लोकल में अवेलेबल नहीं है तो फिर हब से पुल करो. तो ये आपका डॉकर पुल उबंटू क्या करेगा, पुल करेगा इमेजेस फ्रॉम डॉकर हब रजिस्ट्री. और इसके लिए हमें पहले चेक करना होगा डॉकर क्लाइंट, आपका डॉकर डेस्कटॉप.
मैं डॉकर डेस्कटॉप पे लेके आता हूँ आपको, वहाँ से अवेलेबल चीज़ों को पहले डिलीट करता हूँ। सो मैं यहाँ से उबंटू और MySQL हटाता हूँ, डिलीट करता हूँ। ओके, क्योंकि रन कर रहा है एप्लीकेशन, ऐसा है इसलिए ऐसा होता है। इसको मैं यहाँ से बंद करना होगा। ओके, यहाँ से कंटेनर पे जाना होगा, यहाँ से डिलीट करना होगा हर चीज़ें, डिलीट। ओके, ये हो गया डिलीट, ये हो गया डिलीट। ये भी डिलीट करो भाई। ये डिलीट हो गया, कंटेनर डिलीट हो गया, इमेजेस है डिलीट करना है, अभी इमेजेस डिलीट हो जाए क्योंकि कंटेनर रन कर रहा था तो डिलीट नहीं हो रहा था। ये इमेजेस अभी डिलीट हो जाएगा। ओके, वॉल्यूम्स डेफिनेटली GCP डेटा का है, उसको भी डिलीट करना होगा मुझे। तो हमारे पास ये डॉकर डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं है। अब मैं क्यों कर रहा था वो आपको बताऊँगा। तो अगर मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे लेके आता हूँ और यहाँ से मैं डॉकर पुल करता हूँ उबंटू, तो ये क्या करेगा, वो इमेजेस को पुल करेगा डॉकर हब से और ला करके हमारे सिस्टम पर रखेगा और या वो कहाँ दिखेगा, डॉकर डेस्कटॉप पे दिखेगा। तो यू कैन सी दिस इमेजेस हैज़ बीन पुलिंग फ्रॉम द डॉकर हब and is getting is extracted with a digest in SSL encryptions, and you can see this is on Docker desktop now. Let me show you on the Docker desktop. So if you go to this images, you can see the Ubuntu images has been downloaded and you can see clearly on the Docker desktop. Now go to the screen, now again go to the PPT and see the commands, another commands, that is Docker images. So hope it is visible to you, the Docker images. You can see the list of images with the using this commands, Docker images. Go to the again to the command prompt, and this commands you're going to use the Docker images. You can see the Docker images now. You can see, you can reuse the another same all commands like Docker tag Ubuntu. It means like you're going to get the another images with tagging name as a my Ubuntu latest. You're just creating a tag another images with a different name, means like another आप image बना रहे हो with my Ubuntu latest के नाम से, जो कि क्लोन होगा किसका, Ubuntu 20.04 का, जो आप ये देख रहे हो स्क्रीन पे PPT के थ्रू जो देख रहे हैं आप। तो इसमें आप क्या करते हो, एक टैगिंग बनाते हो, एक अलग सा इमेज बना रहे हो जिसका my Ubuntu latest के नाम से बनेगा, जो पहले एग्जिस्टिंग था। अगर आपको हटाना है उस एग्जिस्टिंग को तो डॉकर RMI उबंटू यूज़ करो, मतलब जो डॉकर RMI यूज़ करो, रिमूव करो, और उसी में RMI मतलब रिमूव इमेजेस, और उसको हटा करके आप यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल इमेजेस अगर हटाना हो तो RMI यूज़ करते हुए मल्टीपल ID डाल दो, जिसको हटाना है वो आप इसका यूज़ कर सकते हो। डैंगलिंग इमेजेस, अनयूज्ड इमेजेस के लिए प्रून यूज़ करते हैं अनयूज्ड इमेजेस को, मीन्स अनयूज्ड इमेज मीन्स अच्छा कोई यूज़ नहीं है, मेमोरी फालतू का किल कर रहा है, तो उसके लिए इमेज डॉकर इमेज प्रून -a करते हैं, जैसे वो क्या अनयूज्ड इमेज डिलीट हो जाता है, उसको डैंगलिंग इमेज बोलते हैं। कंटेनर क्रिएट करने के लिए क्रिएट -name माई कंटेनर 8080। स्प्रिंग बूट GCP ऐप लेटेस्ट मीन्स लाइक कोई एप्लीकेशन आपका रन कर रहा है, आपका एप्लीकेशन कोई है और उसको कंटेनर क्रिएट करना है तो आप डॉकर क्रिएट करके यूज़ कर सकते हो। रन भी करने के लिए डॉकर रन उस पर्टिकुलर पोर्ट पे आप रन करा के रन कर सकते हो। तो लेट्स सी, अभी इस सब चीज़ों को रन करने से पहले मुझे तो एक कंटेनर क्रिएट करना होगा, लेकिन कंटेनर क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट वे है हम लोग डॉकर फाइल का यूज़ करेंगे। अभी डॉकर फाइल का क्या कंसेप्ट है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखो आप, डॉकर फाइल क्या है, डॉकर फाइल जस्ट लाइक ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ कमांड्स विच गोइंग टू बी यूज ओवर हेयर। सपोज आपका एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में जावा 17 है 21 है, तो आपको पता नहीं है कौन से इन्वायरमेंट में कौन सा जावा हो सकता है कि नहीं हो सकता है सिस्टम का, तो वो आप क्या कर सकते हैं, एक डॉकर फाइल बना लो और उस इन्वायरमेंट के हिसाब से जावा को सही डॉकर हब से पुल कर सकते हो, तो कहीं से भी आप ओपन से पुल कर सकते हो। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, फ्रॉम फर्स्ट नंबर आपको OpenJDK स्लिम नाम का आपको जार ला के देगा। सेकेंड में आपकी वर्किंग डायरेक्टरी ऐप है, यहाँ पर आपका सारा काम इस ऐप फोल्डर के अंदर में हो रहा है। जहाँ थर्ड में आप देख रहे हो कि स्प्रिंग बूट जार को कंटेनर में यूज़ कर रहा है, जैसे कि ये जार जो है आप जब टारगेट फोल्डर में होता है GCP स्नैपडॉट जार, इसको ऐप.jar में रखता है, ऐप फोल्डर के अंदर में उसको पोर्ट 8080 पे इनेबल करना है
और इसका वॉल्यूम आप बना रहे हो, एक वॉल्यूम क्रिएट करके रखे हो जहाँ पर लॉगर भी डिस्प्ले होगा। उस फोल्डर के अंदर में, ऐप्स लॉग्स फोल्डर के अंदर में आपका सारा लॉग्स मिलेगा। एक नॉन रूट यूज़र सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप बना सकते हो, जो कि आप ही यूज़र को कंटेंट इन्फॉर्मेशन को दिख सकता है जो ऐप यूज़र होगा। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी जावा -jar यूज़ करते हो जैसे आप, उसी तरीके इसको जावा फाइल को एग्जीक्यूट करो। लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए एक डॉकर कंपोज फाइल की जरूरत पड़ेगी, जो कि सेम रूट हमें रिपोजिटरी में यूज़ करना होगा। जहाँ पर अपना गिटहब कोड होता है वहाँ का डॉकर कंपोज यामल फाइल बनाना होगा, जहाँ पर एक कंपोज यामल फाइल के अंदर में आपको इस डॉकर का डिटेल डालना पड़ेगा, डॉकर फाइल का, जहाँ पर एक इस सिंपल कमांड के थ्रू पूरा एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो डॉकर कमांड का एक टूल है जहाँ पर आप डिफाइन एंड रन मल्टीपल कंटेनर, सिर्फ एक ही कंटेनर नहीं मल्टीपल कंटेनर रन कर सकते हो, जिसमें आप एक डेटाबेस का भी कंटेनर अलग अलग बना सकते हो, एक एप्लीकेशन का कंटेनर बना सकते हो, और जो भी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंटेनर या अलग अलग चीज़ों के लिए आप यूज़ करना चाहते हो वैसा कंटेनर आप बना सकते हो। So instead of running container one by one with long commands, you describe everything in a single file with a Docker file. Then you start all service together with a Docker Composer. मतलब एक सारा कमांड्स आप डॉकर फाइल में डाल दो, लेकिन सारे को एग्जीक्यूट करने के लिए डॉकर कंपोज यूज़ करके सारे को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो डॉकर कमांड कंपोज ऐप क्या एक फाइल है जहाँ पर आप सर्विसेज, नेटवर्क्स और वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में फॉर्मेट में लिखा रहता है कमांड्स। डॉकर कंपोज आप यूज़ करते हो बायमल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, जहाँ पर बिल्ड और स्टार्ट कंटेनर को कर सकते हो विद यूजिंग दिस कमांड्स। स्टार्ट ऑल सर्विस करने के लिए डॉकर -कंपोज अप -d यूज करते हैं। स्टॉप करने के लिए डॉकर कंपोज -डाउन। डॉकर कंपोज लॉग्स लॉग्स को व्यू करने के लिए यूज़ कर सकते हो। स्केल अप करने के लिए जैसे बताया शाम के यूज़ के थ्रू, सेम यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। स्केल अप करने के लिए डॉकर कंपोज ऐप, स्केल अप स्प्रिंग बूट ऐप 3 एंड दैट मीन्स आप 3 रेप्लिकास बना सकते हो। रिबिल्ड करने के लिए डॉकर कंपोज मैनेज कर सकते हो। तो डॉकर कंपोज YAML फाइल क्या एक ब्लूप्रिंट है मल्टीपल कंटेनर ऐप का, या एक सर्विस, वॉल्यूम, नेटवर्क, पोर्ट और डिपेंडेंसी इन वन प्लेस को एक जगह रखता है। तो सिंगल कमांड के थ्रू आप एक टॉस कर सकते हैं, स्पिन अप कर सकते हो, मतलब सब चीज़ को अपने हाथों से घुमा सकते हो विद कि आप सबको एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्प्रिंग बूट, माइस्क्यूएल, नजीएस सबको एक जगह ला के रख सकते हो। तो डॉकर कंपोज YAML फाइल कैसा दिखता है, जो इस तरह दिखता है, जिसमें आप एप्लीकेशंस को बना के रखते हो, जिसमें एक फाइल फॉर्मेट रखते हो, डॉकर फाइल का नाम, सेकंड नंबर फर्स्ट वर्जन हो गया, सेकंड नंबर पर देखोगे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन सर्विसेज हो गया, जिसमें आप इमेज का नाम डाल रहे हो, स्प्रिंग बूट GCP 1.0 उसका इमेज रहेगा। वर्जनिंग भी कर सकते हो, नेक्स्ट वर्जनिंग हर समय चेंज हो। कंटेक्स्ट डॉकर फाइल का नाम क्या है, डॉकर फाइल है, आप जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर रखोगे। पोर्ट किस पे होगा, इनेबल ATT पे होगा। MySQL DB आप बना रहे हो कंटेनर उसका, फिर उसके बाद वॉल्यूम्स बना रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो, MySQL DB के लिए एक सर्विस बना रहे हो। तो ये सब चीज़ें इसमें आप डॉकर कंपोज ऐप में यूज़ करते हो। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें अब एक इंटेलिजाई का स्क्रीन बनाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं आपको बनाने के बाद आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ अभी। So let me see, you can able to see my screen, yes. So now you able to see my screen, right? The IntelliJ. So IntelliJ में अगर आपको मैं ऐसा कोई कमांड लिख के नहीं कर रहा हूँ कि रन एज जावा तो आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप टारगेट फोल्डर में देखो तो आपको ये एप्लीकेशन दिख रहा होगा, स्प्रिंग बूट GCP 001 snapshot.jar। तो मुझे यही जार को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है कि ये हमारे लोकल में तो ये चल सकता है कि हमारे पास जावा सेटअप है, लेकिन अलग अलग इन्वायरमेंट में कैसे चलेगा। उसके लिए मैंने बताया था आपको कि डॉकर फाइल बनाते हैं, जिसमें यू कैन गोइंग टू यूज सम इंस्ट्रक्शन ऑफ द कमांड वेयर यू गोइंग टू टेक इट द JDK वर्जन फ्रॉम द डॉकर हब रजिस्ट्री, और फ्रॉम लोकल और कंपनी वाइज जो भी रिपोर्ट बनाया हो उनके हिसाब से एक पार्टिकुलर जार वहाँ से उठा लो जो एग्जीक्यूट हो जाए कहीं से भी, वहाँ से पुल करके वो उस इन्वायरमेंट उस जावा को सेटअप करके रन करा ले, ठीक है। और एक ऐप फोल्डर के अंदर ही सब कुछ काम करे, और उस जार को कॉपी करो टारगेट फोल्डर से app.jar में रख लो, और इसका जार को एग्जीक्यूट कराओ, जावा -jar app.jar को एग्जीक्यूट कराओ। और ये सारे एग्जीक्यूशंस को, इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या मिला है, डॉकर कंपोज YAML फाइल मिला है। उसके साथ साथ इस कमांड यूज़ करो डॉकर कंपोज का, लेकिन उस कमांड को यूज़ करने के लिए डॉकर कंपोज YAML फाइल रखना पड़ता है, जो डॉकर कंपोज YAML में ही डॉकर फाइल को रखना पड़ता है। जो डॉकर फाइल आप देख रहे हो यहाँ पर, उसको यहाँ यूज़ करते हो, जैसे देखो यहाँ पर किधर गया
हम्म, ये देखो आपको दिखेगा इधर ही साइड में। ओके ओके। कंटेनर नेम हो गया, इधर साइड में नहीं है, ठीक है। इसमें आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर रखना पड़ता है, जैसे मैं पीपीटी में दिखाया था आपको, तो यहाँ पर आपको रखना पड़ता है। तो ठीक है, ये क्या करता है, आप डॉकर फाइल को यहाँ पर नाम रख सकते हो, यहाँ पर जैसे मल्टीपल डॉकर फाइल भी यूज़ कर सकते हो आप इन्वेंट बेसिस पे, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कैसा दिखाया था मैंने पीपीटी में आपको दिखाया था, लेट मी अगेन टू यू शो यू अगेन। या सो इफ़ यू सी द स्क्रीन, द पीपीटी वन, yeah, so you can see the line number 12 number, right? Docker file. So you can keep the docker file like docker file 1 2 3 accordingly, whatever do you want to run, execute at specific environment. So ऐसा आप कर सकते हो। मैंने इसमें नहीं हटाया क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वन चूज़ कर लेगा। ठीक है, अभी मैं इंटेलिजाई पे जाता हूँ, यू कैन सी माई स्क्रीन, राइट? सो या इंटेलिजाई ना। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंगल डॉकर कंपोज लूँगा तो ये एप्लीकेशन रन करेगा। ठीक है, तो अभी डॉकर कंपोज ऐप ये क्या करता है, ये आपके एप्लीकेशन को रन करेगा फिर डॉकर कंपोज फाइल के थ्रू, डॉकर कंपोज कमांड के थ्रू, कंपोज अप -t। तो ये क्या करेगा, ये डॉकर कंपोज फाइल को एग्जीक्यूट करेगा, जहाँ से डॉकर फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट पिक करेगा और सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करेगा जो उसके अंदर लिखा है। तो ये एप्लीकेशन हमारे जो लोकल जावा से रन करते हैं वो ऐसा एग्जीक्यूट नहीं होगा, पूरा एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ क्या कर रहा है, एक जार को ट्रिगर कर रहा है। मेन क्लास पे हम रन नहीं कर रहे, एक जार को ट्रिगर कर रहा है और उसका एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर दे रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, ये एप्लीकेशन डॉकर डेस्कटॉप में दिखेगा आपको। ठीक है, और ये कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी इन्वायरमेंट में आप यूज़ कर सकते हो। होप इट इज़ मेकिंग वेरी ईजियर लाइक क्लाउड एंड ऑल। दूसरे कन्फिगरेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी ना, उसके जार के सब एक कैप्सूल्स की तरह, एक सब चीज़ सब कैप्सूल नहीं, एक ऐसा बोल सकते हैं एग्जांपल कि एक सिप है, एक सिप में मल्टीपल कंटेनर्स है, तो वो क्या होता है कि सब उस कंटेनर का यूज़ एक सिप करके ला के दे रहा है कि तुम कहीं भी यूज़ करो, जिधर क्लाउड में लेके जाना है क्लाउड में यूज़ करो। वो जहाँ हर तरह का कंटेनर रखा हुआ है, हर एक तरह का कंटेनर माइस्क्यूएल का हो गया, डेटाबेस का हो गया, रेडिस का हो गया, तो उसी तरह से यूज़ करते हैं। तो वो उस हिसाब से आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू लाइक डॉकर हाउ इट वर्क्स। सो लेट मी शो यू द लास्ट once it is run on the Docker desktop. So so your containers still it is not created because it is like it is still running. 1 second, it's about to be, yeah, you can see it's almost ready. Let me show you the containers now, Docker desktop now. So if you go to the Docker desktop, your application is running already. So this is a Spring Boot applications 8080, and you can see the logs. If you see the logs, 1 second, over here, 1 second, Docker desktop, yeah, my containers, images, containers. So this application is running on the port number 8080 with using, I can show you how it's run in the code. I have to add another screen for the Swagger, so for the browser, so browser, sorry, 1 minute, I'm creating another browser, window capture, browser 4, okay, browser, Swagger. So here you go, the browser, images, localhost 8080. So again, yeah, it's like Swagger. You can see the screen, right? So you can see the local 8080 is being running now. So 8080, so if you see, remove this and let me again, right? So try it out and run it. So you can see hello from a Spring Boot GCP. You can see this is on the same Docker desktop. Yeah, okay, let me open the Docker desktop now. The logs, where is that? Yeah, you can see this logs, right?
So in this logs you can see has been executed. So DAT port has been started. Inspection, you can see the configurations detail, like networks and configurations files mounting on the which where it is logs is mounted on the configuration host names and all. Okay, so overall, like I'm binding up over this Docker, you all clearly understand the microservice architecture, how it's helpful while running the like application, how it runs in the Docker, and it can be helpful in any environment your application could be running, and it's like make a developer easiest, like, and it should be like more cost-effective ways and more like run in any environment, and like infrastructure wise, like kind of is very helpful. The Docker really helpful. I'm going to cover the next video on Apache Kafka for the rest of now. Thank you very much for like again this is the second video. I just because the first video was frozen, so I just wanted to cover the second video now. Yeah, thank you very much. Yeah, if any questions, still the video in the comments, please. Thank you very much.